પ્રગટ જ છે, માત્ર લહરતાળાની અંદર પ્રગટ થયા અને અંતર્ધ્યાન થયા એવું નથી. જ્યાં દેખો ત્યાં સદગુરુ કબીર સાહેબ સાક્ષાત પ્રગટ છે, શબ્દ સ્વરૂપી છે અને તેમના દર્શન આપણે સૌને આપણે કરી રહ્યા છીએ. આપણા સંતો, આપણા મહંત સાહેબ, આપણા અહીં ઘણા બધા સંતોના દર્શન આપણને થયા છે અને થતા રહેવાના છે. પૂજ્ય આચાર્ય સાહેબ પણ દર વર્ષે અહીંયા ભંડારો કરવા માટે આપણે આમ નિમંત્રણ આપીએ તો આવે છે અને તેમના દ્વારા આજે સમગ્ર ઉત્તર ભારત અને આપણા ગુજરાત, અહીંયા આજે ગુજરાત, રાજસ્થાનના ઘણા બધા ભક્તો પધાર્યા છે. આપણા કલોલથી સાહેબ પણ પધાર્યા છે એમના પૂરા મંડળ સાથે, બધા ભક્તો સાથે પધાર્યા છે. ગયા વખતે જ્યારે સાહેબની ચાદર વિધિ થઈ ત્યારે અમેરિકા અને બ્રિટનથી એનઆરઆઈ પણ અહીંયા સૌ પધાર્યા હતા. એ રીતે આ એક સ્થાન એ આમ તો બહુ લાંબો સમય થયો નથી, હવે જ શરૂઆત થઈ છે એમ કે એ તો પણ ખોટું નથી. કારણ કે કબીર સાહેબના પ્રગટ થયાને તો કેટલા સાહેબ 700 એટલે 7 સદીઓ પૂરી થઈ ગઈ. પરંતુ આપણું શાંતની શરૂઆત હમણાં થઈ છે, પરંતુ ધીમે ધીમે આપ સૌનો સહયોગ મળતો રહેશે અને આપણે સદગુરુ કબીર સાહેબના સદજ્ઞાનનો પ્રચાર પ્રસાર કરી અને પોતાના માનવ જીવનનો આપણને જે દુર્લભ માનવ જીવન મળ્યો છે તેને સાર્થક કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીશું. એટલી વાત સાથે આજે સાહેબનો આગ્રહ હતો એટલે આપ સૌની સમક્ષ મારાથી ઘણી બધી ભૂલો થઈ હશે, ઘણી બધા, આ તો અમારો વિષય નથી, પરંતુ સંતોના સાનિધ્ય મળી અને જે કંઈ થોડું ઘણું જ્ઞાન જે જાણો છો તે તમને ગુજરાતી ભાષામાં સમજાવવા માટે કોશિશ કરી છે. ભૂલો મારી છે, કારણ કે એ ઘણા જેના વિશે બોલીએ એની ભૂલ હશે એવું સમજતા હોય છે, પરંતુ બોલવામાં જે ભૂલ થાય એ પોતાની ભૂલ હોય છે. એ વાત સાથે આપે મને શાંતિથી સાંભળ્યો. સાહેબ મને જે શબ્દો અહીંયા આજના પ્રસંગને અનુરૂપ બોલવા માટે તક આપી તે માટે સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ માટે આભાર. સાહેબ बोले सदगुरु कबीर साहब की जय, गुरु साहब की जय. અત્યારે આપણે બધા સદગુરુના ધામના પ્રમુખ સેવક અને ટ્રસ્ટી તરીકે સેવા આપતા આપણા ડૉક્ટર સાહેબ, આપણે બધાને આજના પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ માર્ગદર્શન આપ્યો. સાહેબજીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. સાહેબને નિવેદન છે કે આવી થોડી થોડી સેવા જો સદગુરુએ આપણને આપી છે તો બધા ભક્તો જ્યારે પણ પ્રોગ્રામ થાય તો આવી સેવા આપતા રહે. એવા ભાવ સાથે હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધાવતા મંચ પર સદગુરુ કબીર વિજ્ઞાન આશ્રમ નીલજ નાગપુર મહારાષ્ટ્ર થી આપણા રમા સાહેબ મંચ પર વિરાજમાન છે. ઇધર ઇધર રમા સાહેબ એ લગભગ 3 વર્ષની હતી ત્યારથી આશ્રમમાં રહે. રમા માલા સાહેબને તમે ઓળખતા હશો. માલા સાહેબની શિષ્ય છે. માલા સાહેબની સાથે 3 વર્ષની હતી ત્યારથી મંદિરમાં રહે છે. લગભગ 6 વર્ષ એને મંદિરમાં થયા અને હવે એમને इच्छा जागृत हुई कि नहीं हम गुजरात चलेंगे, गुजरात जाके पढ़ेंगे. तो ऐसे भाव से यहाँ आई है और हमारा विचार है कि इनका एडमिशन हमारे डॉक्टर साहब जी का जो आश्रम शाला है वहाँ निवास भी है, वही रहेगी और वही पढ़ेगी. तो आप सब के सामने अभी भजन सुनाएंगे. आप सब लोग खूब तालियों से इनका स्वागत करेंगे और इनके भाव को आप लोग आगे बढ़ाएंगे. हो सकता है जब अपने लोग कोई पौधा लगाते हैं छोटा सा, तो जितने उसके हम लोग ध्यान पूर्वक सेवा करते हैं तो आगे चल करके वही पौधा हम लोगों को अच्छा फल देता है, मीठे फल देता है.
और अगर सेवा नहीं करेंगे, पौधा लगा दिया, अगर उसकी सही ढंग से सेवा ना हो तो उसका फल हम लोगों को मिलता नहीं। ऐसे ही ये छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के सानिध्य में आए हैं, आश्रम की शरण में आए हैं और अवसर मिला है कि कुछ आगे बढ़ने का, तो उसके भाग्य, उनकी त्याग तपस्या ऐसी है कि घर की कभी याद नहीं करती। भले छोटे बच्चे हैं, घर जाते तो घर की याद आती, लेकिन आश्रम में रहते तो घर की याद नहीं करते। तो आप सबका प्रेम, आप सबका भाव मिलेगा तो आगे चल करके यह छोटी गुड़िया जो इनके भाग्य में हो आगे चल के, लेकिन अपेक्षा तो हम लोगों की यही है कि आगे चल के सदगुरु कबीर साहब के विचारों का प्रचारक बने, तो बच्चा संगीत, तो बच्चा सत्संग सीख करके आप सब भक्त समाज की सेवा करेंगे, ऐसा हम सबका भाव है। तो हम निवेदन करते हैं रमा साहब से कि आप खड़े होकर अपने मधुर वाणी में भक्तजनों को अपने भजन के द्वारा लाभान्वित करेंगे। बोले सतगुरु साहब की, बोलिए परम पुरुष परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, साहेब बंदी त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु मेरा नहीं निश्चय किया विचार, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा को रोकी, उसका डूबा कभी ना जहाज, उसका डूबा कभी ना जहाज, दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जिसकी रोशनी से रोशन जहाज है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा को रोकी, उसका डूबा कभी ना जहाज, कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करने को बड़ा ही होशियार है, फल भोगने को बड़ा ही लाचार है, कर्म करने को बड़ा ही होशियार है, फल भोगने को बड़ा ही लाचार है, ठोकर लेगी और गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठोकर लेगी और गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा को रोकी, उसका डूबा कभी ना जा
कबीर तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी। मिटा दो मेरे मन की, मिटा दो मेरे दिल की सारी गंदगी, साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, कबीर तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी। जाने अनजाने जो, जाने अनजाने मैंने जो मैंने भूल की है, कृपा करी आपने मुझे माफ की है, कृपा करी आपने मुझे माफ की है। कबीर तेरे ज्ञान का प्याला, साहिब तेरे ज्ञान का प्याला थोड़ी सी पीली है, जीवन जीना है सादा कुछ तो सीख ली है, जीवन जीना है सादा कुछ तो सीख ली है। काम करो ऐसा जिसमें, काम करो ऐसा जिसमें सुकृत की कमाई हो, हाथ उठे जो मेरा किसी की भलाई हो, हाथ उठे जो मेरा किसी की भलाई हो। कभी भी न होना पड़े, कभी भी न होना पड़े शर्मिंदगी, साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी, साहिब तेरे चरणों में कोटि कोटि बंदगी। ईर्ष्या जलन ना रहे, ईर्ष्या जलन ना रहे, निर्मल मन साफ हो, सत्य अहिंसा मेरी जीवन में साथ हो, सत्य अहिंसा मेरी जीवन में साथ हो। काम करो ऐसा जिसमें, काम करो ऐसा जिसमें सुकृत की कमाई हो, हाथ उठे जो मेरा किसी की भलाई हो, हाथ उठे जो मेरा किसी की भलाई हो, साहिब। बोले सदगुरु कबीर साहब की जय। अभी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मंच पर विराजमान हमारे रामचंद्र साहब जी, जो अपने इस गुरु आश्रम में रहकर आश्रम की खूब सेवा करते हैं, ऐसे हमारे रामचंद्र साहब मंच पर विराजमान हैं। साहब जी से निवेदन है कि आप अपने मधुर वाणी के द्वारा भक्तजनों को लाभान्वित करेंगे। बोले सदगुरु साहब की। बोलो सदगुरु बंदी चोर कबीर साहब की जय। परम पुरुष परमात्मा की जय। परम पूजाचार साहब की जय। सब आचार गुरुवन की जय। साहेब आज पूर्णिमा का दिन है। कबीर साहब के जेठ के पूर्णिमा पर प्रकट हुए थे काशी लहर तारा में। आज एक ही दिन तो उनके प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाँव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, पाकू लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखा।
सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मत करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर साहब के एक भजन है, प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो, सतगुरु साहब सत्य करी। प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो, सतगुरु साहब सत्य करी। मुक्ति मार्ग को लखा के पल में हर लेते भव निधि की। प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो, सतगुरु साहब सत्य कबीर। काशी में गुरु तन धरि आए, कमल पुष्प पर तरस दिखाए। काशी में गुरु तन धरि आए, कमल पुष्प पर तरस दिखाए। लहर ताल में आनंद पाए, नीमा गई थी पीने नीर। प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो, सतगुरु साहब सत्य करी। मुक्ति मार्ग को लखा के पल में हर लेते रे भवनिधि पीर। प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो, सतगुरु साहब सत्य कबीर। बालक लेकर हृदय लगाया, निरुपति को आन दिखाया। बालक लेकर हृदय लगाया, निरुपति को आन दिखाया। प्रेम मगन हमें उन्हें बताया, प्रेम मगन हमें उन्हें बताया। सतगुरु प्रगटे बाल शरीर। प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो, सतगुरु साहब सत्य करी। मुक्ति मार्ग को लखा के पल में हर लेते वे भवनिधि पीर। प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो, सतगुरु साहब सत्य कबीर। नीमा हर्षित गृह ले आई, कोटि भानु छवि शोभा बढ़ाई। नीमा हर्षित गृह ले आई, कोटि भानु छवि शोभा बढ़ाई। बाजन लागे आनंद बधाई, बाजन लागे आनंद बधाई। दरस करत नासत भव पीर। प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो, सतगुरु साहब सत्य करी। मुक्ति मार्ग को लखा के पल में हर लेते वे भवनिधि पीर। प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो, सतगुरु साहब सत्य कबीर। सब मिलिए से प्रभु को धाओ, भव सागर सहजे तरी जाओ। सब मिलिए से प्रभु को धाओ, भव सागर सहजे तरी जाओ। सार साथ में
सूरत लगाओ साध साथ में सूरत लगाओ साधक फिर नहीं धरे शरीर प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो सतगुरु साहब सत्य कबीर मुक्ति मार्ग को लखा के पल में हर लेते हुए भौनिधि फिर प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो सतगुरु साहब सत्य कबीर। बोलो सतगुरु बंदी बोल कबीर साहब की जय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए यह अवसर फिर न मिले दुर्लभ नर तन पाए। साहब कहते हैं कि ऐसे अवसर न मिले ऐसा मानुष तन दुर्लभ तन फिर ये प्राण छूटेगा फिर आने वाला नहीं है। तो साहब कहते हैं कबीर खड़े बाजार में दिए लुआ हाथ जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। साहब कहते जो घर भूखे अपना वही हमारे साथ चलेंगे और नहीं चलेंगे क्योंकि घर कौन जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही फूकना यही निकालना है घर से। जब ये निकल जाएंगे तो भक्ति करने में कोई माने भक्ति करने में बहुत आसान हो जाएगी। तो एक भजन है ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। हर मास की यह है काया मूर्ख मन क्या देखी लुभाया। हर मास की यह है काया मूर्ख मन क्या देखी लुभाया। ओ हर मास की यह है काया मूर्ख मन क्या देखी लुभाया। देहासक्ति हटा लो प्यारे मना ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। कहते ज्ञान की गंगा यही ज्ञान की गंगा जो सत्संग हो रही है इसी ज्ञान के गंगा में मन को धो लीजिए। मन इतना मलिन हो चुकी है कि तरह तरह के पूजा पाठ में जब तक तीरथ व्रत उसी में मन फंसा हुआ है जो कि परमात्मा से मिलन मिला इतना दुश्मनी ठान ले कि आपन परमात्मा बने के आपन पूजत आप ही गढ़े आप ही स्थापे आप ही पूजे आप ही लेटू चूरन ले बेच चढ़ावे उलट पुलट के आप ही खावे अपने रंगा चोंगा था न अपने बनवत है और वही पूजत है जो परमात्मा ये बोल रहा है इस मन मंदिर में उसका विश्वास नहीं कर रहे लेकिन मन रूपी माया बना करके उसी में बचे हुए। तो साहब कहते हैं
ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। मात पिता बहिन सुत द्वारा, झूठा जग का नाता तुम्हारा। मात पिता बहिन सुत द्वारा, झूठा जग का नाता तुम्हारा। ममता मोह हटा लो मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। तो मात पिता बहिन सुत द्वारा, भाई बहन कोई भी अपना नहीं है, अकेला आया है अकेला जाएगा। कोई केवल प्रेम का धागा है, बंधा हुआ है, भाई है, पिता है, माता है, बहन है, सब। लेकिन जाने वक्त जाते वक्त अकेला ही जाएगा, कोई नहीं, बहुत बड़ा संगी होगा लेकिन वो भी संग नहीं जाएगा। तो आप कहते हैं मात पिता बहन, झूठा है जग का नाता तुम्हारा, ये संसार का झूठा नाता है। तो ममता मोह हटा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। तो ममता मोह एकदम त्याग दीजिए, तभी भक्ति का आनंद पाएंगे। जब से उसमें ममता मोह माया लोभ में फंसे रहेगा जीव आत्मा, तो भक्ति करने का मौका नहीं देगा। तो भजन कर मूर्ख कहाँ व्रत के लिए। यह माया, यह संसार माया की लाशा, यह संसार माया की लाशा। सिर्फ यह संसार माया की लाशा सिर पटके कभी नहीं, इतना सिर पटकने वाला ये संसार माया की लाशा से एकदम पकड़े है। तो सत्संगत सत्संगत काशी नगरी, सत्संगत काशी नगरी, मन की मैल होइलो सगरी। सत्संगत काशी नगरी, मन की मैल होइलो सगरी। जल के गोता लगा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। ये सत्संगत काशी नगरी है। आज यहाँ जो सत्संगत हो रहा है, ज्ञान की धारा बने, इसी मन को मल जो है धो लीजिए। सत्संगत है काशी नगरी, मन की मैल धो लो सगरी। हाँ, जल के गोता लगा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे। तो फिर उसके बाद कहते हैं ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, सत्संगत निर्मल जल गंगा। दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, सत्संगत निर्मल जल गंगा। ओ दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, सत्संगत निर्मल जल गंगा।
सारे पाप दुलारो मना, ज्ञान गंगा नहालो प्यारे मना। कहते दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, सत्संगत जल निर्मल जल गंगा। जहाँ सत्संग हो रही है वहाँ निर्मल जल गंगा, उसमें मन को धो लीजिए, करिए। कहते हैं साहब संगत सुख की कीजिए, संगत सुख के कीजिए, कुसंगत से दुख होए। कहीं कभी जाइए वहाँ जहाँ अपनी संगत है, तो जहाँ अपनी सत्संगत हो रही वहाँ जाइए। अब कुसंगत वाले संगत पड़ेंगे तो उसमें दुख के अलावा सुख होगा नहीं। तो साहब कहते हैं कि सारे शरीर को गोता लगा के धो लीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मानुष तन मिला है तो कुछ कर लीजिए, और नहीं तो पशु दिन भर खा पी करके मौत से सो रहे से कोई मतलब नहीं। पशु के समान न बने, भजन बिना मनई पशु के समान, तो पशु के समान न बने। तो साहब कहते हैं ऐसा ओ सतगुरु ज्ञान बोलो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की जय, परम पुरुष परमात्मा की जय, महंत सतमता साहब की जय, सब संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, संत रामपुर धाम की जय। साए साए बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की। थोड़ा जोर से बोलिए भैया, देखो भी आश्रम के परिसर में जो बाहर बैठे उनको भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। इतनी संख्या में आज हम लोग बैठे हैं और सतगुरु कबीर साहब का आज का प्राकट्य दिवस, इतना जोर से बोले कि कम से कम साहब सब तक में बैठे वहां तक सुनाई दे। थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए सतगुरु कबीर साहब की, बोलिए सतगुरु कबीर साहब की, गुरु साहब की, परम पूज्य आचार्य साहब की, आचार्य गद्दी बड़ैया की, धरमना तपोधाम की, सदगुरु हरिदास साहब की, गुरु देवादास साहब की, गुरु सुखमणिदास साहब की, संत रामपुर धाम की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की, आनंद करावे वाले भक्त की, आज के आनंद की जय। साहेब बंदगी साहेब। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित भव पीर। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भयो छाल। बंदो बंदो गुरुपद चरण रज मुद मंगल यागार, ध्यान धरत नाशत सकल सकल पाप भयो छाल। कबीर नामं पतितं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं।
दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। जय सतसुकृत जय मुनीन्द्र प्रभु जय करुणामय जय कबीर कलि दुख हरण सदा नमांसि सदा नमांसि। मानव मात्र के संता भरता बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब गादी पर विराजमान त्याग एवं वैराग्य के धनी परम पूज्य आचार्य साहब अत्रे सदगुरु हरिदास साहब ने पावन भूमि साहब ने पावन तपोभूमि ने छत्र छाया में बैठेला बधा सदगुरु कबीर साहब ना प्रेमी हंसजन भक्तिमती माताएं बंधुगण एवं मंचासीन गुरुतुल्य संत समाज सभी को आज के इस पावन अवसर पर साहेब बंदगी आज આપણું બધાનું સૌભાગ્ય કે આજે આપણે બધા સદગુરુના પાવન ધામમાં એમની પવિત્ર છત્રછાયામાં પ્રતિવર્ષના ભાંતિ આ વર્ષે પણ આપણે બધા સદગુરુ કબીર સાહેબનો 627મો પ્રાકટ્ય દિવસ આપણે બધા ઉજવી રહ્યા છીએ અને આ ઉત્સવ જેમ કે અત્યારે ડોક્ટર સાહેબે કીધું કે આપણા ભારત વર્ષના બહાર વિદેશોમાં પણ જે આપણે કબીરપંથી ગુરુભાઈઓ છે કે જે કબીરપંથી ગુરુભાઈ નથી જે સમાજ સુધારકો છે કે કેટલાક સમાજના અગવા લોકો પણ જે સદગુરુ કબીર સાહેબના योगदान ने समाज सुधारक तरीके जे साहेबे समाज ने व्यवस्था में जे परिवर्तन कर्यु केटलाक विद्वानों तो साहब ने युग परिवर्तक पण कीधुं। युग परिवर्तक कोने कहेवाय जो एवो बदलाव एमना समय में लावे के जेमा आखी सिस्टम विचारधारा बदली जाए एवा सद्गुरुना एवा उपदेश है। सद्गुरु ने एटलो मोटो योगदान अपना भारतीय समाज में है तो केटलाक जे कबीरपंथी गुरुभाई नहीं पण जे समाज सुधारक है के केटलाक समाजना लोको छे ए पण आज ने आ सद्गुरु साहब ने प्राकट्य दिवस ने घणा बधा लोको मनावे छे ने आपणे बधा तो साहब ना अनुयायी छीए। साहब ने आपणे बधा परम पिता परमात्मा तरीके अपना हृदय मंदिर में अपने स्थापना करी। साहब ने भक्ति साहब ने अर्चना वंदना करी आपणे बधा साहब ने आगळ समर्पित थईने साहब ने आपणे भक्ति करवाळा छे। तो आजना आ दिवस आपणा माटे एक उत्सव छे। कबीर साहब नो एक उत्सव छे। जेम के साहेबे कीधुं के આજનો દિવસ કેટલા મને આપણી દિવાળીનો પર્વ કહેવાય તો કોઈ અતિશયોક્તિ નથી। દિવાળી આવે એટલે કેટલાક ઘણા બધા લોકોની એક માસ પહેલાથી તૈયારી થઈ જાય। બધા ઘર સાફ સફાઈ કરાવે, પેન્ટિંગ કરે, દિવાળીની સફાઈ કેટલો બધો ખર્ચ થઈ જાય એટલે આપણા ભારત વર્ષનો મોટો ઉત્સવ કહેવામાં આવે દિવાળી। એવી જ રીતે अपना अध्यात्मना क्षेत्र में अपने ज्या अपने कल्याणना मार्गे अपने जोड़ाए छीए तो सद्गुरु कबीर साहब नो आ पर्व आपणे माटे
દિવાળી કરતા મોટો ઉત્સવ છે અને હોવો જોઈએ. જેટલા ઉત્સાહથી આપણે આ કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈએ, સદગુરુની સાથે સદગુરુના સાનિધ્યમાં આપણે ભાવ રાખીએ, એટલો જ આપણના જીવનમાં એક મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રભાવ પડશે. અને મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રભાવથી જે આપણા પાપ તાપ સંતાપ જે મિટાવવા માટે આપણે બધા ક્યાં લોકો તીર્થ ભરત મંદિર મસ્જિદ ક્યાં ક્યાં ફરવા જાય છે, ક્યાં ક્યાં જઈને માથા પટકે છે અને પોતાનું જીવન એમ જ ગુજારી દે છે. તો એ બધા પાપ તાપ સંતાપ એ બધા કેવી રીતે મટે? જ્યારે આપણે સદગુરુના સાચા સ્વરૂપને સમજીને એમના સાનિધ્યમાં એમના ચરણમાં જ્યારે આપણે સર્વસ્વ આપણનું ન્યોછાવર કરીએ. બધા પ્રકારના જે જીવનમાં અવગુણો છે, જો અહંકાર છે, તનનો, મનનો, ધનનો, બલનો, શિક્ષાનો, વિદ્યાનો, તમામ પ્રકારના લોકોમાં અહંકાર હોય છે. એ બધા અહંકાર આપણા ભક્તિમાં બાધા છે. અને એ અહંકારના લીધે જો ભક્તિનો જો સ્ત્રોત છે, જો હૃદયમાંથી જો ઝરણા જો વહેતું થવું જોઈએ, એમાં બાધા પડે. શાનાથી? આ બધા અહંકારો. જો એ અહંકારો જીવનમાં હોય તો ક્યારેય ભક્તિ સફળ થઈ શકતી નથી. એટલા માટે સમર્પણ, સદગુરુના સામે સમર્પણ હોવું જોઈએ. સદગુરુના ધામના પ્રતિ સમર્પણ હોવું જોઈએ. લોકો જો જ્યારે મંદિરે જાય છે, આપણે બધા જાણીએ કે મંદિરમાં શું છે, પણ લોકો આસ્થા રાખીને શ્રદ્ધા રાખીને કેટલો મોટો લાભ લઈ લે છે. પોતાના જીવનના કેટલા પાપ તાપ સંતાપોને દૂર કરી લે છે. કેમ? એમની શ્રદ્ધાનું પરિણામ. એવી શ્રદ્ધા એમની હોય અને એ શ્રદ્ધા જો આપણા જીવનમાં હોય અને એની સાથે સાહેબનો વિવેક વિચારનો જ્ઞાનનો બળ પણ સાથે હોય તો પછી સોના ઉપર સુહાગા છે. બધા લોકો તો શ્રદ્ધા રાખે મંદિરમાં, મસ્જિદમાં, કીર્તનમાં, વ્રતમાં, એ લોકોને જો લાભ થતું હોય તો આપણે સાથે તો શ્રદ્ધાની સાથે જો સાહેબનો વિવેક જ્ઞાન હોય, વિવેક વિચાર હોય તો પછી તો સોના ઉપર સુહાગા છે. ને એ સદગુરુનો માર્ગ છે. આપણને શ્રદ્ધાની સાથે સાથે સાહેબે આપણને વિવેક વિચાર અને જ્ઞાનની તલવાર સાહેબે આપણને આપી છે. અને એ જ્ઞાનના તલવારથી જે સંસારના જેટલા મોહ માયાના જે જાળ જંજાળ છે, જો અવગુણોના, દુર્ગુણોના, કુસંગના જો જાળ જેમાં આપણે બધા ફસાયેલા છીએ, એ સદગુરુના જ્ઞાનના તલવારથી જો આપણે કાઢીએ તો પછી આપણને સત્સંગ જવામાં કોઈ અવરોધ હોય? કોઈ અવરોધ નથી. અવરોધ એ બધા આપણે બનાવેલા જ અવરોધો છે, પણ આપણે એ બધા અવરોધોને ઓળખતા નથી. ઓળખીને એને દૂર કરવાનો જો સચોટ પ્રયત્ન સંતોએ આપણને કીધું છે, એ માર્ગ આપણને બરાબર અનુસરતા નથી. આજનો આ દિવસ જ્યારે આપણે સદગુરુના ધામમાં એકઠા થયા છીએ, આજે આપણે બળૈયા ગદ્દીમાં આચાર્ય સાહેબના સાનિધ્યમાં જેવી રીતે આપણે બધા બેઠા છીએ, અત્યારે આચાર્ય ગદ્દીમાં પણ એ મોટી મહિમા છે. આચાર્ય સાહેબ પણ ગાદી પર વિરાજમાન છે અત્યારે, અને એમની સામે કેટલાક ભક્તજનો બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, રાજસ્થાન, દૂર દૂરથી બધા ગયા છે. અને મોટી સંખ્યામાં આજ આચાર્ય ગદ્દી બળૈયાના પવિત્ર ધરા પર ખૂબ મોટો કાર્યક્રમ આયોજન થઈ રહ્યું છે. અને એવો જ આપણે પણ બધા નહીં મોટા પણ નાના અંશમાં પણ આપણે છીએ, પણ એ જો સતલોકની મહિમા શું છે? જેટલા આપણે સતલોકની વાતે કરીએ, સત્પુરુષની વાતે કરીએ, તો સતલોકની મહિમા આપણે બધા કહીએ ને कि जहां पर हंसा करत किलो, सत्य लोक की ऐसी बाता, कोटि भानु एक रोम लजाता, ताचड़ हंसा करत किलो. तो सतलोक जहां पर हंसा किलोल करता है, वो अवस्था, सतलोक की अवस्था, वो क्या अवस्था है? आज अपने गद्दी बड़ैया में सतलोक बना हुआ है और आज हरिदास साहब जी के धाम में सतलोक बना हुआ है. सतलोक वो हमारा भाव, जो हमारा सत्य भाव है, उस भाव में जब हमारी स्थिति बनती है
तब आप लोग सतलोक में होते हैं। और जब आप अपने मन के प्रपंच में लगे रहते हैं, जब आप अपने मन के प्रपंच से जुड़े रहते हैं, तब आप यमलोक में रहते हैं, काल के देश में रहते हैं। काल का देश और सतलोक दोनों साथ ही है। काल दयाल को रूप न चीने, यम से दीन होए मुक्ति वर मांगे, मुक्ति निवास पास सतगुरु के, मदन मिलत जो प्रेम रस पागे। साहब कहते हैं सतलोक और यमलोक, मृत्युलोक, जब अगर हम लोग अपने मन के प्रपंच में रहते हैं, मन के मान्यताओं में रहते हैं और मन की धारणाओं में जब हम लोग बहते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि हम लोग यमलोक में चल रहे हैं, मृत्युलोक के वासी हैं। और जिस क्षण हम लोग अपने जो सत्य साधना, जो सदगुरु साहब ने हमारा अपना स्वरूप बताया है, सार शब्द स्वरूप, जो सार शब्द की साधना जो हमको सदगुरु हरिदास साहब ने दी है, जब उस भाव में जब हम लोग रहते हैं, तो आप अपने घर में रहते हुए भी आपकी उपस्थिति सतलोक में बनी है। आज जिस क्षण में हम लोग बने हुए हैं, अभी आपने बताया भेगा जी, तो घर में कोई चिंता है तुम्हारे कि घर में सुख हसे के कोई काम છે કે એ છે, બધા આપણે છોડી દે, બધા જ્યારે આપણે સત્સંગમાં છીએ, સંત સદગુરુના આપણે સાનિધ્યમાં છીએ, તો જ્યારે આપણે આપણા સ્વભાવમાં, નિજ સ્વભાવમાં, આપણે નિજ સ્વરૂપની સ્થિતિમાં, જ્યારે આપણે જેટલા સુધી આપણી સ્થિતિ બને, તો આપણે બધા સતલોકમાં છીએ। એ આપણી જો સ્થિતિ છે, નિજ સ્વરૂપની સ્થિતિ, અને એ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ સાધના છે। એટલા માટે તમારે જેટલા પણ દેવી દેવતા હોય, તમે જો બધા આંખ મૂંદીને સ્વરૂપસ્થ થઈને બેઠીને સાધના કરે છે, તો આજે આપણે એમ ન સમજો કે આપણે यहाँ साधारण प्रोग्राम આપણે बैठा છીએ, नहीं, ये सतलोक है। और सतलोक में आप जितनी आत्मा यहाँ बैठी हुई है, यह सतलोक की शोभा है। जैसे आज आचार्य गति बढ़िया में सतलोक की शोभा बनी हुई है, वैसे ही आज आपके हरिधाम, हरि साहब के इस धाम में यह सतलोक की शोभा है। आप लोग अपने आत्मभाव में हैं, आप लोग अपने चेतन स्वरूप में हैं। अभी आप अपने मन के भाव को भूल चुके हैं, और अगर नहीं भूले तो समझिए आप गुरु के धाम में होते हुए भी आप मन के जाल में, मन के निरंजन के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। सतलोक कहीं अलग नहीं है। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। जो तमाम लोगों की चर्चा हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, यह आलंकारिक रूप से हम लोगों को बताया जाता है ताकि हमारी जिज्ञासा बढ़े। तो सतलोक क्या है, हम लोगों का कहाँ से आविर्भाव हुआ है, तो हमारे संत सदगुरु हम लोगों को समझाते हैं। गुरु जी ने आपको ज्ञान दिया होगा, हरिदास साहब भी हमको समझाए। नि अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजा, सुनो संत धर्मदास। मनते माया उपजी, माया त्रिगुणी रूप, तीन लोक के रूप में बांधे सकल स्वरूप। नि अक्षर से अक्षर भया, अक्षर हमारे चेतन आत्मसत्ता, हमारा अपना स्वरूप। और नि अक्षर जहां से आया है वह क्या है, नि अक्षर वह अवस्था है, वह पद है। कितने लोग तो बताते हैं कि कोई लोक है, वहां सतपुरुष परमात्मा विराजमान है, लेकिन वो एक पद है। उस पद के ऊपर जब आप सारे पदों को अतिक्रमण करके जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो वही आपका सतलोक है। सो पद गहो चाहते सदगत पार ब्रह्म सो न्यारा, कबीर साहब कहते। सो पद गहो, पद एक अवस्था होती है। जैसे हमारे देश में व्यवस्था में राष्ट्रपति पद है, प्रधानमंत्री पद है। जो भी व्यक्ति उस पद के ऊपर योग्यता को प्राप्त करता है वह प्रधानमंत्री कहलाता, राष्ट्रपति कहलाता है। लेकिन हमेशा के लिए होता है नहीं, 5 साल के लिए जब तक रहेंगे उस पद के ऊपर तब कहलाते हैं। लेकिन पद, राष्ट्रपति जो पद है, प्रधानमंत्री जो पद है, हमेशा बना हुआ है, वो हमेशा वह पद है। उस योग्यता को जो प्राप्त करेगा वह उस पद का कहलाएगा। वैसा ही परमात्मा सत्ता, जो परम सत्ता है, सदगुरु कबीर साहब का जो निर्मल स्वरूप है, वह मुक्त अवस्था है।
सारे प्रपंचों से मुक्त अवस्था एक अवस्था है, और उस अवस्था में पहुंचना, उस अवस्था से हम चूक गए। जैसे कोई बच्चा निर्व्यसनी हो, हमारे बच्चे होते, आप लोग भी रहे होंगे, किसी प्रकार का विकार नहीं था, लेकिन जब कुसंग में पड़ गए, किसी गलत संगत में पड़ गए, फिर विकार आ गए, फिर शराबी बन गए, कबाबी बन गए, चोरी हिंसा करने वाले बन गए। तो है तो आप वही, लेकिन कुसंग में रंग करके आपकी गति बदल गई। वैसे ही हम जिस मुक्त अवस्था में, जिस निअक्षर अवस्था में हम लोग थे, निअक्षर से अक्षर भया, निअक्षर से, इसलिए कबीर साहब विजय में कहते हैं कि रंग कुरंगे रंग या तय किया और लगवार। लगवार कहते प्रेम। कोई लड़की, कोई स्त्री अगर अपने पति को छोड़कर किसी और पति, कोई और पुरुष से प्रेम करती है तो बोलते लगवार हुआ, उसका वो लगवार है। तो हमने जो हमारा अपने स्वरूप की स्थिति थी, जिस स्थिति में हम अपने स्थिति में रमण कर रहे थे, उससे हम लोग अलग होकर के प्रकृति के सानिध्य में हम लोग आए। प्रकृति से हमारा मेल हुआ, तिया किया और लगवार, हमने और चीज से लगवार, और वही से हमारा मन निर्माण हुआ। जब मन निरंजन, जिसको निरंजन कहते हैं, वही निरंजन निर्माण हुआ, वही निरंजन हमारा स्वरूप बना। आज हमारा स्वरूप निरंजन बना हुआ है। देखिए, अगर क्रोध हो जाए तो आदमी मारने काटने में नहीं डरता, लोभ अगर बढ़ जाए तो आदमी चोरी हिंसा करने में नहीं डरता, मोह बढ़ जाए तो किसी लांछन से आदमी नहीं डरता, मोह में बह जाता है। तो यही तो मन का स्वरूप है, यही तो निरंजन का स्वरूप है। हम निरंजन स्वरूप हो गए। हम जिस मुक्त अवस्था में, परमात्म अवस्था में थे, वहां से हम लोग लगवार होकर के प्रकृति से संबंध बना करके हम लोग निरंजन के स्वरूप हुए। इसलिए कबीर साहब का कितना सुंदर शब्द आप लोग सुनते होंगे, ए जियरा तू अमर लोक के पर्यो कालवश आई हो। ए जियरा तू अमर लोक के पर्यो कालवश आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भर माई हो। ए जियरा तू अमर लोक के पर्यो कालवश आई हो। निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावे हो। चर्म दृष्टि के कुल फाते दे, 84 भर मावे हो। ए जियरा तू अमर लोक के। और कुछ साधना मार्ग में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, कई धर्म से, कई संप्रदाय से जुड़ते हैं, तो हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? तो साहब कहते हैं, जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु पर पंच अपारा हो। योग जाप नेम व्रत पूजा बहु पर पंच अपारा हो। जैसे बधिक वोट ताटी दे विश्वास आहारा हो। जैसे बधिक वोट टाटी के दे विश्वास आहारा हो। ए जियरा तू अमर लोक के। कितना सुंदर साहब हम लोग को संदेश देते हैं कि हे जीव, तू इस देश का वासी नहीं है, तू कहाँ का वासी है? अमर लोक का वासी, जहाँ का संदेश सदगुरु साहब हमको दिए हैं, सदगुरु कबीर साहब दिए हैं। कबीर साहब हमारे अपने स्वरूप को बताए, हमारा अपना स्वरूप ही कबीर स्वरूप है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जब हमारी स्थिति
जो आज संसार में बनी है, खेती में, बाड़ी में, धंधे में, बिजनेस में, शरीर में, संसार में, नाते में, जहाँ हमारी स्थिति आज बनी है, हमारी स्थिति वही तो है। इसलिए तो हम लोग दौड़ते हैं उसी के पीछे। हम लोगों की स्थिति बनी है घर में, हम लोगों की स्थिति बनी है मकान में, नाते में, पोते में। हर समय हम लोगों की दौड़ वही स्थिति होने के कारण हम लोग वही जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस समय हमारी स्थिति कुछ पल के लिए सही, लेकिन सदगुरु के ज्ञान में आती है, सदगुरु के उपदेश में आती है, सदगुरु के ज्ञान का एक शब्द अगर हमारे कान में लगता है तो तुरंत हमारे अंदर जागृति होती है और हम सदगुरु के ज्ञान के ऊपर जागृत होकर के जब हमारी स्थिति सदगुरु के ज्ञान में बनती है तो समझ लीजिए आपका अभ्यास सदगुरु के धाम में, सदगुरु के सतलोक में आप लोगों की स्थिति बनने की तैयारी है। लेकिन हमारा मन इतना बड़ा हम लोगों का दुश्मन बना हुआ है कि हम लोगों को तो उस लाभ को देखने ही नहीं देता। दुनिया का लाभ खूब दिखाता है, वहां जाएंगे तो ये होगा, उससे मिलेंगे तो वो होगा, उससे मिलेंगे तो वो होगा। लेकिन ये कभी मन ये नहीं सोचने देता कि नहीं, कुछ समय गुरुद्वारे में जाकर के सेवा करें, कुछ समय जाकर के गुरु के सानिध्य में जाकर के हम लोग बैठे, कुछ समय निकाल करके गुरुधाम की कुछ सेवा करें, संत सदगुरु के वाणी वचन को सुने। इसमें मन कम रस लेता है, मन हम लोगों को बाहर ज्यादा भटकाता है। इसलिए हम लोगों की स्थिति संसार में बनी हुई है। हम लोगों का प्रयत्न होना चाहिए, हम लोगों को सदगुरु का ज्ञान मिला है, सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि मिली है, तो हम लोगों को हमारी स्थिति अपने स्वरूप ज्ञान में, स्वरूप बोध में होनी चाहिए। यह कब होगी? जब हम लोगों के जीवन में संतों का संग होगा, जब हम लोगों के जीवन में संतों के, संत गुरु के धाम की सेवा होगी और सदगुरु के दिए हुए ज्ञान की साधना होगी। जब यह त्रिवेणी आपके जीवन में बनेगी, तब इस त्रिवेणी में जब आप स्नान करेंगे, तब आप समझिए आप लोगों का स्नान, आप लोगों की स्थिति सतलोक में बनेगी। सदगुरु का ध्यान, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु की सेवा और सदगुरु का भजन, जब ये त्रिवेणी हम लोगों के जीवन में बनेगी, इस त्रिवेणी सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में यह तीनों त्रिवेणी है। और जगह आप देखेंगे कहीं पूजा है, कहीं पाठ है, कहीं ज्ञानी है, कहीं भक्ति को कोई महत्व नहीं है। कितने लोग भक्ति को ही महत्व देते हैं, ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं और ज्ञान के अहंकारी में अहंकारी बन करके सब पर्वत की तरह ऊंचे बने रहते हैं। जब परमात्मा की कृपा होती है तो पर्वत पे पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा, नीचे ही बह करके चला जाएगा। ऐसे ही अहंकारी बन करके आदमी ज्ञान के रहते हैं तो उसके जीवन में भक्ति नहीं बनी रहती। इसके लिए साहब के जीवन, साहब के ज्ञान में भक्ति है। तो हम लोगों को जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु प्रपंच अपारा हो, ये सब प्रपंच है। और इस प्रपंच का लाभ यही है कि उसके द्वारा अपने मन को पवित्र करके हम लोग साधना में लगे, अपने स्वरूप की प्राप्ति में लगे। शरीर से संबंधित सुख, संसार से संबंधित सुख, यही यम का व्यवहारिक रूप है। एक सैद्धांतिक रूप हम लोग जानते हैं कि यमराज का स्वरूप है, निरंजन है, हम लोगों को फंसाता है, जीवात्मा को फंसाता है, फंसा करके 3 लोग के पिंजड़े में डालता है। ये तो हम लोग सैद्धांतिक उसका रूप हुआ। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे यमराज के, निरंजन के, मन के 2 पहलू हैं। एक पहलू सैद्धांतिक है जो हम लोग सुने हैं कि निरंजन परमात्मा से 84 युग तपस्या करके उसने जो है तप करके परमात्मा से वरदान पाया, उसने अपना 21 ब्रह्मांड का अलग राज्य बनाया। वहां फिर जीवात्मा को परमात्मा से और 84 युग तप करके उसने जीवात्मा परमात्मा से कहा कि नहीं, मैंने सृष्टियां बनाई है तो तुम मुझे आत्मा को भी दो। तो परमात्मा ने फिर पूछा कि कौन कौन आत्मा जाने को तैयार है? तो जो आत्माएं तैयार हुई वो जाकर के निरंजन के लोक में जाकर के रहे। मतलब कहानी रूप में सब बना करके हम लोगों को बताया गया है। लेकिन वास्तविकता यही है कि परमात्मा ऐसा क्यों करेगा? परमात्मा हमको काल के देश में अग्नि में जलने के लिए क्यों जाने देगा? हम लोग अपने माता पिता, अपने लड़के को बोलेंगे, कोई कहेगा कि मुझे कहीं कुएं में कूदना है तो आप कूदने देंगे? नहीं कूदने देंगे, जहां तक हो सके रोकेंगे। यह कथाएं हम लोगों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सार्थक है, ठीक है, लेकिन निरंजन कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है। हमारा अपना स्वरूप ही निरंजन है। हमें अपने स्वरूप को सुधारने की आवश्यकता है। और जब तक हम अपने स्वरूप को कब सुधार पाएंगे? जब हम लोग साधना करेंगे, जब लोग अभ्यास करेंगे, मन को हम लोग सेवा में, सत्संग में
मन के संस्कारों को जब हम बनाएंगे तब कहीं मन हम लोगों को इसमें स्थिति बनाने देगा। इसलिए साहब कहते हैं, आगे साहब कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि सतगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करो मिलाना हो, जिनके मिले परम सुख उपजे, पावो पद निर्वाणा हो। जुगन जुगन हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताहि पहुँचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। साहब कहते हैं कि सतगुरु जीव पीव के रक्षक, तासे करो मिलाना हो, जिनके मिले परम सुख उपजे, पाओ पद निर्वाणा हो। लास्ट में कहते कि कहे कबीर ताई पहुंचा हूं, सत्य पुरुष दरबारा हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं जीव अपने स्वरूप की साधना करेगा, भक्ति करेगा, मैं उसको सतलोक पहुंचाऊंगा। कौन कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब कौन है? हम लोग नाम प्रकाश के तीजा भेद में पढ़ते हैं, तीजा भेद में कहो गंभीर, जाए भेद से मिले कबीर, गुरु कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रगट अजब तमाशा। जहां संतता प्रगट भयो, जहां असंत गुप्तता रहो, कहे गुप्त प्रगट कैसे के पूजे, बिन गुरु ज्ञान आंख नहीं सूझे। गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु के द्वारा बोध नहीं, इसलिए हमको आंख से दिखाई नहीं देता। हम लोग उसको और कथानक के रूप में ले लेते, लेकिन गुरु कबीर का सबघट वासा, गुप्त प्रगट अजब तमाशा। जहां संतता प्रगट भयो, जहां जागृति है, जहां स्वरूप का बोध है, वहां सतगुरु कबीर साहब प्रगट है। और जहां स्वरूप का बोध नहीं है, जहां स्वरूप में हमारी स्थिति नहीं है, तो वहां तो मन का ही वास है, निरंजन का वास है, तो वहां कबीर साहब अब प्रकट रहते हैं। तो हम लोगों को सतलोक में ले जाने वाले कबीर साहब हमारे गुरु, ज्ञान के दाता गुरुजन है। जब गुरुजन हमें हमारे स्वरूप का बोध दिलाते हैं और हम अपने मन के निरंजन स्वरूप को मार करके हम अपने स्वरूप को निर्माण करते हैं, अपने स्वरूप में स्थिति बनाते हैं, तब हम लोगों का शब्दों के पास होता है। यही कबीर साहब का शब्दों के पास हम लोगों को कराना है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये समझिए कि आज जितनी जीवात्माएं हम लोग हैं इस काल के देश में, काल का देश मतलब मन निरंजन, हमारे स्वरूप का देश, हमारा ही बनाया हुआ देश है, हमने ही बनाया है। आप अकेले संसार में आए थे, धीरे धीरे विकार जागृत कर दिए, फिर शादी ब्याह के भी 2-4 बच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हो गए। प्रपंच किसने बनाया? हमने ही तो बनाया है। यह सब प्रपंच हमारा बनाया हुआ, सारे विकार हमारे बनाए हुए हैं, और यही निरंजन का रूप है। इस निरंजन के रूप को मारेगा कौन? मारेगा जो सेवा में साधना में लगेगा। यही हम लोगों की साधना है। सदगुरु आचार्य गद्दी बढ़ैया जहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं, सदगुरु कबीर साहब का, सदगुरु मदन पति साहब का ज्ञान हम लोगों को यही है कि हमारा जो स्वरूप है शब्द स्वरूप है, जब जो चेतन आत्मा है यह शब्द स्वरूप है, और परमात्मा महाचेतन मुक्त अवस्था है। तो जब हमारी ये चेतन सूरत शब्द के योग के साधना के द्वारा स्वरूपस्थ होकर के जब ने महाचेतन सार शब्द पद में जब विलय होगी, तब हमारी मुक्ति होगी। इसलिए आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का जो दिव्य स्वरूप है, वह दिव्य स्वरूप हम लोगों को अपने हृदय में धारण करके हम लोग साधनारत बने, अभ्यासरत बने। लेकिन इसकी सीढ़ी है, जब हम किसी स्लैब पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी होती है, पहली पगतिया, दूसरी पगतिया, तीसरी पगतिया, एक साथ चढ़ना संभव नहीं है। कोई कोई ऐसा जागृत जीव होता है, कोई संस्कारित जीव जिसको स्वतः ज्ञान निर्माण होता है। बाकी और जैसे हम लोग जैसे प्रपंच में जो भ्रमे हुए लोग हैं, आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जैसी आज आप व्यवस्था बनाए रखे हैं, महीने में कम से कम एक बार, हर महीने यहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था सदगुरु ने बनाई है। इस सुंदर व्यवस्था ये समझिए सतलोक धाम है ये। अगर आप लोग घर में रहते हैं, प्रपंच में रहते, पहले का वो यमलोक का धाम है।
और सदगुरु का धाम ये सतलोक का धाम है। तो कम से कम 29 दिन अगर आप लोग यमराज के जाल में आप लोग कार्यरत रहते हैं तो कम से कम इतनी तो हिम्मत करो, इतने तो मन को बल दो कि नहीं, कम से कम 30 दिन में एक दिन तो मैं जाकर के जरूर सदगुरु के बनाए हुए जो व्यवस्था जो बनती है, सतलोक की व्यवस्था बनती है, उसने मुझे जाना है, मुझे जाना है। ऐसी ही व्यवस्था दर महीने आप लोग बना करके जब ये भाव बनाएंगे, जब ये श्रद्धा रखेंगे, तभी भक्ति का झरना हृदय में से बहेगा। अन्यथा भक्ति का झरना जो काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, मोह, मत्सर, कपट, ईर्षा, इतने बड़े बड़े पत्थर हमारे हृदय में पड़े हुए हैं कि सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है वो चोट मारी है वो झरना बहने के स्थान पे, लेकिन फिर भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें हमारा बड़ा अज्ञान है। हम लोग अज्ञान में डूबे हुए, हम लोग अज्ञान दशा में डूबे हुए हैं। 70 साल, 80 साल, 90 साल की अवस्था होने के बाद सरकार ने बेकाम समझ करके आपको रिटायर्ड कर दिया कि अब कोई हमारे काम के तुम नहीं हो, 60 साल के हो गए, जाओ घर बैठ कर आराम करो। सरकार ने जब हमको रिटायर्ड कर दिया फिर भी हम अपने आप को रिटायर्ड नहीं मानते और डबल शक्ति से गृहस्थी में हम लोग जागृत लग रहे हैं और डबल कुछ समय तो 8 घंटा तो घर में से ड्यूटी के लिए निकाल लेते थे सरकार की ड्यूटी के लिए, लेकिन अब वो 8 घंटा भी अब नहीं निकलता, वो भी हम सब प्रपंच में लगा देते हैं। इसलिए हम लोगों को ध्यान होना चाहिए, हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। हम लोग सदगुरु के सानिध्य में आए, संसार को देखने की दृष्टि जब हम गुरु के सानिध्य में आए हैं तो हमारी दृष्टि एक्सरे दृष्टि होनी चाहिए, एक अलग दृष्टिकोण हमारा बनना चाहिए। जिस गति से संसार देखता है, जो निगुड़ा लोग जो देखते हैं, जो गुरु के ज्ञान से जुड़े हुए नहीं है, जिस धारा में संसार बह रहा है उसी धारा में अगर हम लोग बहने लगे तो सदगुरु का ज्ञान हमारे हृदय में उतरा नहीं है। इसलिए मन में तो जन्म जन्मांतर के विषय है, मन में तो जन्म जन्मांतर के विकार है, वो तो हम लोगों को संसार की तरफ घसीटेगा ही, उसका तो स्वभाव है, मन का स्वभाव है। लेकिन हम लोगों को जब गुरु ने हम लोगों को ज्ञान दिया, हमारे चेतन स्वरूप का गुरु ने जब हमको बोध दिया, तो हम लोगों को अपने स्वरूप में स्थिति बनाने के लिए साधना बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए। मन का एक अपना अलग स्वरूप है, हमारा अपना एक चेतन अलग स्वरूप है। मन के स्वरूप से हट करके मन के स्वरूप को पहचानना, हमारे हर कार्य के हमें साक्षी बनना, साक्षी बनो। जैसे हम साधना में बैठते, अभ्यास में बैठते, तो कितने लोग शिकायत करके साहब जब हम लोग साधना में बैठते हैं मन तो शायद भटकता है, कहीं और जाता है, कहीं और जाता है। आप सबका अनुभव होगा, आप सब भी बैठते होंगे, तो ये सोचिए कि मन जाएगा कहाँ, कहाँ तक जाएगा। साहब उदाहरण देते हैं, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोड़, जैसे कौवा जहाज के ऊपर बैठता है, मानो कि सवेरे 3-4 बजे का समय, वो समुद्र के किनारे पे जहाज खड़ा है, अब जहाज के जाने का समय होगा, जहाज का खलासी जहाज को स्टार्ट कर दिया, कौवा उसके ऊपर बैठा हुआ है। जब सुबह होते होते वह जहाज एकदम बीच समुद्र में पहुंच गया, अब कौवा देख रहा है, उजाला हो गया, उसको दिखा कौवे को, देखता तो चारों तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ उसको पानी ही पानी दिखा, किनारा दिखेगा ही नहीं क्योंकि समुद्र तो अथाह है, जिधर देखो उधर पानी। तो कौवा घबरा करके दौड़ता है, भागता है कौवा, लेकिन कहां तक भागेगा, जिधर भागेगा उधर पानी ही पानी है। तो वापस लौट करके आकर के वापस वो जहाज पे ही बैठेगा, उसको कोई और आधार नहीं है। जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोड़, उसका और कई स्थान उसको दिखता नहीं है, वो वापस आकर के फिर से जहाज पे ही बैठेगा, उसको और कहीं अन्य स्थान नहीं है। वैसे ही हमारा मन है, आप मन को समझिए तो सही, मन का तो स्वभाव है दौड़ने का, जन्म जन्मांतर से दौड़ा है, जितने 84 लाख योनि में भटका है, जिस जिस योनि में गया है उसके सारे संस्कार इसके हृदय में चित्रित है, उसके चित्त में चित्रित है, तो वो तो उधर दौड़ेगा, लेकिन दौड़ेगा कहाँ तक, कहाँ तक दौड़ेगा। लेकिन जैसे आप अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे, आप अपनी स्थिति जैसे जहाज के, आपका शरीर जहाज है, आपके चेतन स्वरूप स्थिति उसमें जहाज है, तो जब आप अपने चेतन स्वरूप को, स्थिति को जो गुरु ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में जब हम जागृति रखेंगे, मन भले दौड़ता है लेकिन वापस आना उसको इसी में, उसका स्थान मन शरीर में ही है, कहीं बाहर उसका स्थान नहीं है, वो इसी जहाज में आएगा। और जब इस जहाज में आएगा तो आपके चेतना के घेरे में आएगा। तो ऐसा जब धीरे 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 जब हम अभ्यास बनाएंगे
तो धीरे धीरे मन के विकार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और हम लोग अपने स्वरूप में हमारी स्थिति बनने लगेगी। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए आज का जो शुभ अवसर है, सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस, आज 627वां प्राकट्य दिवस, 627 साल साहब इस संसार से गए हैं। साहब का आगमन भी दिव्य रहा है और साहब का प्रस्थान भी दिव्य रहा है। जब साहब का आगमन हुआ, जब संदेशा साहब लेके आए अपने मुक्त अवस्था का, तो काशी में लहरतरा में साहब प्रकट हुए और प्रकट होकर के नीरू नीमा के द्वारा उनका लालन पालन हुआ, जैसे कभी साहब हम सबको समझाए हैं। और साहब ने अपने जीवन में रह करके, साधारण जीवन में, जब साहब जुलाहा घर में रहे तो जुलाहा घर के कार्य साहब किए होंगे, वैसे आज हम लोग भी कार्य करते हैं। आप लोग खेतीबाड़ी से जुड़े खेतीबाड़ी करते हैं, नौकरी से जुड़े नौकरी करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जैसे इस संसार में रह करके सारा व्यवहार करते हुए अपने दिव्य स्वरूप में रहे। हम लोग भजन में सुनते हैं कि साहब कबीर जतन से ओढ़ी चौकी त्योधर दीनी चदरिया। साहब जिस शरीर को साथ धारण किए और उसको उसी दिव्य स्वरूप में साहब छोड़े, अर्थात पवित्र भाव से। वैसे आज हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इस शरीर को प्राप्त किए हैं, तो जब संसार में रहते हुए सारे कार्य को करते हुए आप लोग भी सदगुरु के द्वारा दिए हुए दिव्य मार्ग के ऊपर आप लोग बने रहे। और भक्ति और माताओं से निवेदन है कि हम जहाँ भी भक्त लोगों के यहाँ जाते हैं तो आप सब भी साधना करिए, अभ्यास करिए, भजन करिए। भजन केवल साधु संतों का काम नहीं है, आप सभी भक्तजनों का काम है। जो अपना कल्याण इच्छुक है, हम लोगों को कुछ अनुभव ही नहीं कि हम लोग दुख में हैं। जब दुख पड़ता है तब हमको मंदिर दिखता है, जब दुख पड़ता है तब संत सदगुरु दिखते हैं, और बाकी जब सुखी रहते हैं तब संत सदगुरु ध्यान में नहीं आते। यही हम लोगों की भूल होती है। इसके लिए ये सब समझिए कि दुख के घर में हम लोग बैठे हुए हैं। जैसे कसाई के घर में बकरे बंधे होते हैं, बकरे कसाई खरीदते हैं ना, खरीद के ले जाते हैं, और जैसे जैसे ग्राहक आता है वैसे वैसे उसको पार्सल करते हैं। तो वैसे हम लोग काल के क्षेत्र में हम लोग बंधे हुए हैं, कब किसका नंबर आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित संसार में कभी ना समझे। भले अपने सुख के लिए माने कि नहीं साहब दया है, हम संतुष्ट है, अच्छे हैं, जरूरी है ये भाव, लेकिन अंतर हृदय से सावधानी से आप लोग कभी ना समझे कि हम सुरक्षित है संसार में। संसार में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। यह काल का देश है, कब इसमें परिवर्तन हो जाए और कब बिजली चमके काल की और कब हम लोग ध्वस्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग बिल्कुल असुरक्षित है, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। ये तो बालू का ताश के पत्ते के समान ये महल है। जैसे ताश के पत्ते का महल होता है, हवा आता है गिर जाता है, वैसा यह शरीर है। जैसा काल का हवा लगेगा यह गल के खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधान रहो, समय बहुत कम है। हमारे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है कि हमारा इतने साल का हमारा कोई लेखा जोखा है, कोई पल भर का ठिकाना नहीं। इसलिए आप लोग साधना से जुड़िए, अभ्यास से जुड़िए। हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त किए, सदगुरु का ज्ञान हमको मिला है, तो हम लोग सत्य साधना से जुड़े। आप लोग तमाम प्रकार के, आप लोग कबीर साहब के मार्ग से जुड़े हुए हैं, फिर भी हम भक्तों के यहाँ जाते देखते तमाम देवी देवता, तमाम प्रकार के कैलेंडर, तमाम प्रकार के पूजा स्थल, आप लोग एक जगह केंद्रित करिए ध्यान, एक धारा में बहिए। जैसे पतिव्रता का प्रेम पति के प्रति होता है, वैसा ही हम लोगों का प्रेम एक परमात्मा के प्रति होना चाहिए। और परमात्मा का साक्षात स्वरूप हमारे सदगुरु कबीर साहब है। और सदगुरु कबीर साहब का इतना दिव्य स्वरूप, सदगुरु जिस दुख से हम लोग घबराते हैं, शरीर के, संसार के, परिवार के, ये दिव्य दुख तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब के सानिध्य में जो लोग आप लोग देखते हैं, वीर सिंह बघेल, रानी इंद्रमती, धर्मदास साहेब, और कितने जो पंडा के, जगन्नाथ के पंडा, जितने दुखी थे, सब सदगुरु के सानिध्य में आकर के सारा दुख उनको मिट करके समाप्त हो गया। इतना दिव्य साहब का स्वरूप है। तो आप लोगों को अलग कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सदगुरु के ज्ञान के ऊपर विराजमान हो जाइए। एक सदगुरु साहब की आप लोग भक्ति करिए। अनेक भक्ति में अपने मन को भटकाओ मत, मन चंचल हो जाएगा। जब अलग अलग होगा तो माताओं से निवेदन है कि आप लोग निष्ठा पूर्वक, आप लोग सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं,
सदगुरु कबीर साहब के भक्ति से आप लोग जुड़े हुए हैं और सदगुरु कबीर साहब के भक्ति के आप लोग अधिकारी हैं। आप लोग अधिकारी हैं। एक समय ऐसा था कि स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, स्त्री को साधना अभ्यास का अधिकार नहीं था, स्त्री को जो है समाज में बैठने उठने का ढंग का अधिकार नहीं था। लेकिन आज हम लोगों का दिव्य जीवन हम लोगों का है, सदगुरुओं की कृपा हुई है हम लोगों के ऊपर, महापुरुषों की कृपा हुई है, आप सबको समान अधिकार मिला है हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का। भौतिक जगत में आप माताएं आगे बढ़ती है, वैसे अध्यात्म जगत में भी आप लोग आगे बढ़िए। आगे बढ़ करके आप लोग भक्ति से जुड़िए। माताओं से निवेदन है कि आप लोग अपना भजन मंडल, सत्संग मंडल आप लोग गुरु के धाम में आकर के बनाएं, बना करके मन को रंगाओ, जैसा मन संसार में रंगा हुआ है। और वो रंग तो ऐसा है कि अंत तो दुखदाई है, उसमें सुख नहीं है वो रंग में, लेकिन जो सदगुरु का जो ज्ञान का रंग है उसमें आनंद ही आनंद है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इसलिए आप लोग सदगुरु के ज्ञान में रंगिए, कुछ समय निकालिए। माताएं जो सास जो माताएं हैं, आप लोग आएंगे तो धीरे धीरे आप लोगों की बहुएं जुड़ेगी, धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनाइए, आकर्षण बनाइए। आकर्षण मन को प्रभावित करता है। जब भक्त जैसा संसार का विषयों का आकर्षण मन को प्रभावित करता है, ऐसे ही अगर अपने भक्ति को जागृत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक भक्ति का आकर्षण आपको निर्माण करना पड़ेगा। आप जो पुराने से पुराने भक्त लोग हैं, जब भी यहाँ प्रोग्राम होता था अपना कार्य समझ करके, जैसे आप लोगों के घर में भी शादी हो, ब्याह हो, तो कितनी तैयारी आप लोग करते हैं? 1 महीना पहले से तैयारी करते हैं 1-2 महीना पहले तैयारी करके पत्रिका छापते हैं, बांटते हैं। कोई कार्य करना हो घर में तो महीना भर पहले से तैयारी करते हैं। लेकिन आप लोग कभी अंतर हृदय में ऐसा लगता है कि गुरु के धाम में आयोजन आ रहा है, गुरु के धाम में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, सत्संग का प्रोग्राम होने वाला है, हमारे आचार्य साहब आने वाले होते हैं, तो कभी ऐसा मन में लगता है कि आश्रम की क्या व्यवस्था होगी, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे कार्य होगा? कभी हृदय में लगता है? अगर नहीं लगता है तो समझ लेना हम लोग भक्ति से बहुत दूर है, हम लोग गुरु के मार्ग से हम लोग बहुत दूर है। जैसे घर के हम लोग चिंता करते हैं, वैसी चिंता जब आप गुरुधाम की करेंगे, संत सदगुरु के स्थान की करेंगे, नहीं बहुत ज्यादा समय दीजिए, लेकिन कुछ तो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जब इस प्रकार के आयोजन आते हैं तो अंदर में आप लोगों के सामने से हमको साधुओं को फोन आना चाहिए कि साहब क्या व्यवस्था है, साहब कुछ व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, साहब कैसे आयोजन होगा, साहब क्या किया जाएगा। यही तो प्रेम है, यही तो अनुराग है, यही तो मन में तड़प पैदा करेगा, आपके जीवन में जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा। जो मन का जो जाल है अपने हृदय में बसा हुआ, यह मन का जाल विरल होगा, हल्का होगा। आप लोग देखते हैं जब बारिश होने की संभावना होती है, देखो अभी बारिश का समय आ रहा है, अभी देखो गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कितने भक्त लोगों को कहते हुए हमने सुना है कि गर्मी बहुत बढ़ गई, अब बारिश शुरू हो जाएगी। क्यों शुरू हो जाएगी, क्यों अंदाजा है? क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन है। जैसे उष्णता बढ़ती है, जैसे गर्मी बढ़ती है, तो जो वातावरण होता है विरल होता है। जो बादल जो दूर दरार रहते हैं, वो सारे बादल दौड़ करके आते हैं उस स्थान पे जहाँ हल्का वातावरण, मतलब वहां बरस पड़ते हैं। वैसे हमारे हृदय को, मन को हल्का तो करिए। हम लोग मन को हल्का करते ही नहीं है। गुरुधाम में भी आके तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे जबरदस्ती पकड़ के लाया गया हो, बैठाया गया। जय बुलाओ तो जय नहीं बोला जाता है। राम सिंह भैया अकेले गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं और कोई उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। बताओ, मन को हल्का करना पड़ेगा। जब मन में विरह जगेगा, जब प्रेम जगेगा, जब मन हल्का होगा तब होगा। और मन को हल्का करने की यही विधि है कि आप लोग सेवा से जुड़िए। आश्रम में कहीं भी आते हैं, भले आप लोग डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, लेकिन आप लोग जैसे जब गुरुधाम में आते हैं तो ये मत समझिए कि हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हैं। ये समझिए कि हम गुरु के धाम में आए हैं, गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरण की रज है, हम लोग गुरु के चरण की धूल है। तो जहां भी हम लोग आते हैं, कोई भी अव्यवस्था दिखती है, कोई भी गंदगी दिखती है, कोई भी कार्य दिखता है, तुरंत उसको हटा देना चाहिए। सबका का जिसके भी नजर पड़े, ये नहीं कि कोई अमुक व्यक्ति ही करे। अगर आप लोग सोचते हो कि हम लोग दान करते हैं, धर्म करते हैं, हमने कुछ दिया है, तो फिर वो बैलेंस बराबर हो जाएगा। परमात्मा के मार्ग तभी खुलेगा जब आपका बैलेंस बचा रहेगा। जब आपने दिया, आपने आकर के हाथ बंद करके आपने सेवा दी, दूसरे लोग सेवा कर रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं, आपको भोजन खिला रहे हैं, भोजन बना खिला रहे हैं,
तो आपका दिया हुआ तो बराबर हो गया, बैलेंस सपाट हो गया। आपने दिया और दूसरे हाथ से लिया, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से लिया, तो आपका बैलेंस बराबर हो गया। तो आपका सब तक जाने का मार्ग खुलेगा कैसे? कुछ बैलेंस होना चाहिए। जब हम लोग एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं, उसके सिवा जब हम सेवा करेंगे, उसके सिवा जब हम लोग सारी व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझ करके अपने से कुछ सेवा हम लोग करेंगे, गुरुधाम की सेवा, उसके पवित्रता का ध्यान रखेंगे, उसके विकास का ध्यान रखेंगे, उसके प्रगति का ध्यान रखेंगे, तो ये अनुराग, ये भाव, ये प्रेम आपके हृदय में भक्ति का झरना खुलेगा और आपके जीवन में भक्ति का प्रवाह शुरू होगा। इस प्रकार अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो जरूर हमारे गुरु साहब हरिदास साहब की कृपा हम सबके ऊपर होगी, सदगुरु कबीर साहब की कृपा हम सबके ऊपर होगी। तो बहुत ज्यादा न करते हुए, समय हो गया है, तो बहुत ज्यादा न करते हुए आज का यह पावन प्रसंग सदगुरु ने जो दिव्य मोल जीवात्मा के कल्याण के दिया है, आज से 627 साल हुए और 27 साल से हमारे सदगुरु हरिदास साहब जैसे महापुरुष 627 साल से ज्ञान को हम सबके लिए प्रवाहित करते आए हैं। और अगर हम लोग उस ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन को अगर उस ज्ञान के प्रवाह में न डुबाए, न डुबकी लगाए, तो हम लोगों का यह दुर्भाग्य है, यह हम लोगों का दुर्भाग्य है। इसलिए साहब कहते हैं, संतो सदगुरु भक्ति सतगुरु आनी, संतो भक्ति सतगुरु आनी, पाहन फोड़